131 दिनों के आमरण अनशन के बाद श्री फतेहगढ़ साहिब की पवित्र धरती पर समाप्त करने के बाद किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल देर शाम खन्ना के एक निजी अस्पताल में जांच कराने के लिए पहुंचे। जानकारी देते हुए जगजीत सिंह डल्लेवाल के बेटे गुरपिंदर सिंह ने बताया कि आज अनशन खत्म करने के बाद सभी किसान नेताओं ने जगजीत सिंह डल्लेवाल से चेकअप कराने की गुजारिश की थी, क्योंकि इतने दिन भूख हड़ताल की गई तो ये देखना हो जरूरी है क्या उनका शरीर को भोजन पचाने में कोई दिक्कत ना हो। वहीं जगजीत सिंह डल्लेवाल का इलाज करने वाले डॉक्टर मिनाल खन्ना ने बताया कि उनका कीटोन लेवल पॉजिटिव आया, जो कि इतने दिनों से भूख हड़ताल पर होने के चलते, स्ट्रेस होने के चलते हुआ। ਅੱਜ 131 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 131 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਆਰਗਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੂਰੀ ਵਾਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਈਟ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਰਾਏ ਸੀਗੀ, ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਨਤਕ ਜਿੰਨੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹੀ ਰਾਏ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਡਾਈਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਈਏ। ਸਾਰੇ ਆਰਗਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੂਰੀ ਵਾਰ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੌਫਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਧੀ ਡਾਈਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾ ਕੇ ਆਰਗਨਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲਾਈਟ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ? ਅੱਜ ਖੰਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਚੈੱਕਅਪ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕੀ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਟੋਨ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੇ, ਕੀਟੋਨ ਬੋਡੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਮੋਰਚਾ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੋਰਚਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਟੋਨ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਫੇਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੇਰ ਅੱਜ ਕੀਟੋਨ ਬੋਡੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ 4+ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। 4+ ਦੀ ਅੰਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੱਸਣ 'ਚ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ 4 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਟੋਨ ਬੋਡੀਜ਼ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਅਨਸ਼ਨ ਤੋੜਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਡਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅਨਸ਼ਨ ਤੋੜਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲਵਾਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤਹਿਤ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਵਾਂ ਪੀਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤਹਿਤ ਲਵਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਕੀਟੋਨਸ ਦੇ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਫਾਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੈਸੇ ਬੀਪੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਟੇਬਲ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਫਿਲਹਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 131 ਦਿਨ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੋਡੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇੰਪੈਕਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਸਰ ਬੋਡੀ ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ 3-4 ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਪੀ ਕਾਫੀ ਗਿਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕੀਟੋਨਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਰਹੇ। ਕੀਟੋਨਸ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖਾਣ ਕਰਕੇ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਡਾਈਟ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੋਊਗੀ? ਸਰ ਡਾਈਟ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਨੋਰਮਲ ਡਾਈਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲਿਕੁਇਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ 1-2 ਦਿਨ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਸੈਮੀ ਸੋਲਿਡ टाइप डाइट शुरू करके इन्होंने ओके फिर नॉर्मल डाइट दी जाए। हमारे संवाददाता धर्मेंद्र सिंह भी इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ फोन पर जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, देखिए एक तो 131 दिन बाद डल्लेवाल ने अपना आमरण अनशन समाप्त किया है, अस्पताल के अंदर गए, अपना चेकअप करवाया। सबसे पहले तो किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की स्वास्थ्य को लेकर जानकारी दीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, जिस तरीके से 131 दिनों के लंबे आमरण अनशन के बाद आज इसे समाप्त किया गया, तो उसके बाद डल्लेवाल को खन्ना के खन्ना नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। अब तक की उनके स्वास्थ्य का अपडेट है कि अभी हालत में कुछ सुधार हुआ है। अभी डॉक्टर से बात हुई थी तो डल्लेवाल जी ने जूस भी पिया है। इससे पहले नारियल पानी पिया था और उसके बाद अब जूस पिया है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि डॉक्टरों की निगरानी में जहां स्वास्थ्य ठीक हो रहा है वहीं उनकी डाइट को लेकर भी एक प्रॉपर प्लान बना है। उसके हिसाब से ही डल्लेवाल कुछ ले सकते हैं। आपको जहां ये भी बता दें कि 131 दिनों के अनशन के दौरान डल्लेवाल पहली बार हॉस्पिटल में भर्ती नहीं हुए। इससे पहले 7 बार उनकी तबीयत बिगड़ चुकी है।
पिछले साल की बात करें तो 6 दिसंबर को उनकी किडनी में समस्या आई थी, जब 8.5 किलो वजन कम हो गया था। उसके बाद कई बार खनौरी बॉर्डर पर भी स्वास्थ्य खराब हुई और तेज बुखार होता था, कभी जी। शरीर में हिलजुल कम हो जाती थी, कभी जो ब्लड प्रेशर है वो ज्यादा बढ़ जाता था। इसकी वजह यही थी कि अमरण अनशन वो चल रहा था। तो यही जी। कारण है कि जो आज की रिपोर्ट आई है उसमें एक बात तो साफ हो गई है कि 131 दिनों में इन्होंने कुछ नहीं खाया, क्योंकि जो डॉक्टर से जी। बात हुई है कीटोन लेवल 4+ आया है। उससे उसका कारण यही होता है कि अगर कोई व्यक्ति लंबा समय अपना पेट खाली रखता है तो उनका कीटोन लेवल जो बढ़ जाता है। तो स्पष्ट है कि डल्लेवाल जी ने किसानी मसलों को लेकर अपनी जान की परवाह न करते हुए इतना लंबा अमरण अनशन किया। अब उनका स्वास्थ्य जो है ठीक हो रहा है, इसमें समय लगेगा, लेकिन डॉक्टरों की निगरानी में उन्हें 24 घंटे के लिए फिलहाल रखा गया है। जी धर्मेंद्र, अभी जो जानकारी आपने दी, केवल मात्र 24 घंटे के लिए अभी उन्हें अस्पताल में ही रखा गया है। जी बिल्कुल, और उसकी वजह ये भी है कि जब जगजीत सिंह डल्लेवाल खन्ना नर्सिंग होम में भर्ती हुए तो जी। उन्होंने पहली बात ही ये बोल दी थी कि वे कल को जो उनका धनौला में महापंचायत का कार्यक्रम है जी। उसमें जी। हर हालत में भाग लेंगे, क्योंकि जैसे पहले भी हमने देखा है कि जगजीत सिंह डल्लेवाल किसानों के रैलियों में, किसानों की बैठकों में जाते रहे हैं। बेशक वो जी। अमर अनशन पर थे, एम्बुलेंस में जाते थे। आज भी फतेहगढ़ साहिब की किसान महापंचायत में एम्बुलेंस में आए और व्हील चेयर पर रहे। इसी प्रकार से 24 घंटे की निगरानी इसलिए कहा गया है कि कल के कार्यक्रम में पहले ही डल्लेवाल ने बोल दिया है कि वे हर हालत में जाएंगे। सो जी। फिलहाल जो है उन्हें 24 घंटे की निगरानी में रखा गया है। कल को सुबह 10 बजे के करीब दोबारा से चेकअप होगा। अगर बिल्कुल किसी तरह का कोई रिस्क नहीं होगा तो डॉक्टर अपनी तरफ से उन्हें जाने देंगे। जी। और दूसरी बात, अगर कोई किसी तरह का रिस्क होगा तो वो डॉक्टर उनको बता सकते हैं, लेकिन जाना ना जाना वो डल्लेवाल और उनके साथियों के पर निर्भर होगा कि वो आगे जाएंगे या नहीं। पर अब तक तो यही कार्यक्रम है कि वो हर हालत में किसानों के मसलों को लेकर जो भी संघर्ष होगा उसमें भाग लेंगे। जी धर्मेंद्र, बिल्कुल आज भी देखिए किसान महापंचायत में शामिल हुए, उन्होंने अपना आमरण अनशन आज खत्म किया। इसके अलावा कल, जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं, कल भी किसान महापंचायत के अंदर जाएंगे और जगजीत सिंह डल्लेवाल पहले ही साफ कर चुके हैं कि अब जो संघर्ष है उसको और ज्यादा तेज किया जाएगा, देशव्यापी आंदोलन किए जाएंगे। अब किसानों का आगे का रोड मैप क्या रहेगा अपनी मांगों को लेकर, चूंकि 4 मई को किसान और केंद्र सरकार के बीच में एक बार फिर से वार्ता होने जा रही है। जी बिल्कुल, जैसे कि आज उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि केवल अमरण अनशन वो भी किसानों की अपील पर खत्म किया जा रहा है, जी। लेकिन आंदोलन जारी रहेगा। अब तक की सूत्रों से जो जानकारी मिली है, फिलहाल 4 मई तक जो जी। पंजाब में सिर्फ किसान महापंचायतें की जाएंगी और 4 मई को जो केंद्र सरकार के साथ वार्तालाप होने जा रही है उसमें काफी हद तक उम्मीद है कि किसानों के मसले हल हो जाएंगे। जी। इसके अलावा अगर हम देखें तो जे भी जगजीत सिंह डल्लेवाल और उनके साथियों का कहना है कि 4 मई की बैठक का वो इंतजार करेंगे, हर हालत में बैठक में जाएंगे। वहां पर उनकी एक ही मांग होगी कि एमएसपी गारंटी कानून को अभी जी। बनाया जाए। किसी प्रकार का कोई सम्मान नहीं देंगे सरकार को, ना ही किसी भरोसे पर आएंगे। अगर सरकार उनकी मांग को पूरा नहीं करती तो फिर उसी दिन से दिल्ली की तरफ दोबारा जाने का मोर्चा संभाला जाएगा। और मोर्चा कैसा होगा, किस तरीके से दिल्ली जाना है, दिल्ली जाने के लिए क्या क्या रास्तों का प्रयोग करना है, उसके लिए जो भी रणनीति है वो 4 मई से पहले किसान संगठन अपनी बना लेंगे। उस रणनीति को बनाने के लिए ही पंजाब में 4 मई तक किसान महापंचायतें हो रही हैं। और दूसरी बात ये तय हो गई है कि फिलहाल 4 मई तक किसान जथेबंदियों का किसी तरह का कोई रोष धरना या फिर किसी के गिरफ्तार फिलहाल नहीं होगा। बाकी जो लुधियाना के उपचुनाव में उसको लेकर भी डल्लेवाल ने स्पष्ट कर दिया है कि वो कोई सियासी तौर पर जो संघर्ष नहीं कर रहे, वो किसानों की मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। जी धर्मेंद्र, बिल्कुल, लेकिन देखिए जब आमरण अनशन पर जगजीत सिंह डल्लेवाल थे और इस दौरान जब किसान और केंद्र सरकार की वार्ताएं चल रही थी जिसमें पंजाब सरकार के मंत्री भी शामिल थे, तो जैसे ही केंद्रीय कृषि मंत्री वहां पर पहुंचते हैं तो सबसे पहले जाकर जगजीत सिंह डल्लेवाल से मुलाकात करते हैं, उनकी हालचाल जानते हैं। लेकिन चूंकि अब खत्म हो चुका है जगजीत सिंह डल्लेवाल का आमरण अनशन, तो क्या जो ये वार्ता रहेगी उस दिशा में जा पाएगी? क्योंकि इससे पहले कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव था उनके आमरण अनशन को लेकर। तमाम किसान नेता जो है
लगातार अपील कर रहे थे कि उनकी जो तबीयत है वो ज्यादा ही खराब होती जा रही है। ऐसे में केंद्र सरकार को जल्द से जल्द कुछ ना कुछ उपाय निकालना होगा। तो अब ऐसे में जब उन्होंने अपना अनशन खत्म कर दिया, अब ऐसे में क्या बातचीत उस तरीके से हो पाएगी या उस दिशा में हो पाएगी, उतने प्रभावी ढंग से हो पाएगी? अब जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। जब तक आमरण अनशन पर जगजीत सिंह डल्लेवाल बैठे थे, चाहे वो केंद्र सरकार हो या पंजाब सरकार हो, उन पर दबाव ज्यादा था। अब आमरण अनशन खत्म हो गया है तो कहीं ना कहीं दोनों जी सरकारों को एक तरह की राहत भी मिली है, जी उन पर दबाव कम होगा। जैसे 4 मई की बैठक में आप बात कर रहे हैं, हो जी सकता है कि अब आमरण अनशन खत्म होने के चलते केंद्र या राज्य सरकार किसानों की सभी मांगों को पूरा करने पर सहमत ना हो, जी क्योंकि उनके लिए एक तो बिल्कुल प्रेशर हट गया है कि अब किसी प्रकार का कोई आमरण अनशन नहीं है, और दूसरी तरफ से शंभू और खनौरी बॉर्डर से जो जी किसान मोर्चा है वो भी हट गया है। तो बिल्कुल आपकी बात सही है कि उस बैठक में किसानों का प्रभाव कम पड़ेगा। जी जो वो बैठक कितनी सफल होती है वो तो 4 मई को पता चलेगा, लेकिन आज के आमरण अनशन के खत्म होने के बाद सरकारों पर दबाव कम हो गया है और किसानों के लिए एक नई चुनौती खड़ी हो गई है कि आगे की रणनीति को किस तरीके से बनाना है कि सरकार पर दबाव बना सकें। जी बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।